Hello, welcome to my YouTube channel. Okay, my name is Pratik Bhuming and I create content around QA, interview questions and important programming essentials for learning coding and getting a job in software testing industry. Right? So let's start this video. But before starting this video, let me set the context of this video. In this video, I'm going to teach you. I'm going to teach you about data types. Okay. In the last video, I have produced right. In that video, I have talked about if and else and for loops, looping for coding interview questions. Go and watch this video, then watch this video. Okay. Watch all the videos sequentially. That will be beneficial for you itself. Okay, and also don't forget to subscribe. Lot of people don't subscribe my YouTube channel, they just simply come and watch and go away. So subscribe, this doesn't cost you a single rupee. Okay, subscribe my channel and like every videos. Okay, this is educational videos, this will only benefit you if you invest your time in watching these educational videos. There is no harm for you. So let's start this video and talk about data types. This concept you need to understand if you want to solve any problems related to data types. Okay, so how many types of data types are there? Two types, that is primitive and non-primitive data types. So these are the two types of data types in programming. May it be Java, JavaScript, TypeScript, Python, any coding languages. These are the two types of programming language. So in this video, I'm going to specifically talk about Java. So what is there in primitive data types? So in primitive data types, there are int, char, boolean, float, double, long. So these are the few data types in primitive data types. Okay, float, int, char, boolean, double, long. So this you might not understand because you don't know programming. If someone knows the programming and watches this video, they will easily understand. Because you are a beginner, you are not able to understand. So what is uh, float? So you must have done mathematics in your school, colleges and childhood days, right? So what is float? Float is a decimal, guys. So this is, what is this number? 128.92. This is a decimal number. This is a float number. Float. This is a float number. Okay. In coding programming context, we denote this number as a float. I hope you got it. What is the next concept? The next concept is integer. What is integer, guys? It is very easy to understand. Just listen carefully. Integer is one number. In mathematics, we know this as number, right? In programming coding context, we know this as integer. Simple concept. 1 is an integer, 2 is an integer, 3 is an integer, 4 is integer. These are integers. Very simple concept. Now coming to next one, that is character. What is character? Alphabets. You must have studied ABCD. पढ़ा ही होगा आपने कौन नहीं पढ़ा होगा भाई. ABCD is character. Okay. ABCD is character. It is lowercase or uppercase, that doesn't matter. Everything is character. And each of this character has value. What is long? What is long? Long मतलब वो लंबा वाला नहीं, long हो गया, long tower नहीं. प्रोग्रामिंग के कॉन्टेक्स्ट में सोचना पड़ेगा. Long मतलब, for example, there is a number 25.
there is a number 2,05,000. So which one is the long number? Which one is the long number? Guess it and comment down below. So this one is the long number. ये लंबा है इसलिए लॉन्ग नंबर है, ऐसे सोचना चाहिए, ठीक है। ये हो गया इंटीजर। सो दिस इज द थिंग। नाउ बुलियन। बुलियन मतलब क्या हो गया? अरे यार हम आसमान से गिरे हैं यार, बुलियन क्या हो गया भाई? बुलियन मतलब क्या यार, समझाओ भैया। बुलियन मतलब हो गया ट्रू एंड फॉल्स। बचपन में एमसीक्यू क्वेश्चंस तो किए ही होंगे, उसमें ट्रू एंड फॉल्स मार्क करता होगा आपने, राइट, क्वेश्चन में। वो हो गया बुलियन, ठीक है। उसको प्रोग्रामिंग में बुलियन बोलते हैं। ये भी हो गया। डबल क्या हो गया यार? डबल क्या हो गया? डबल मतलब दुगना। दुगना नहीं भाई, दुगना नहीं। डबल का मीनिंग दूसरा होता है प्रोग्रामिंग कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। एक कॉन्फ्यूजिंग चीज यहाँ पे है, फ्लोट एंड डबल। इस दोनों में कंफ्यूज मत होना। एक बार तुम गूगल करके देख लेना कि फ्लोट एंड डबल में डिफरेंस क्या है। तो मैं जो बोल रहा हूँ फ्लोट एंड डबल है कि डेसिमल पॉइंट 25.65 और ये हो गया 100.75। तो ये दोनों हो गया नंबर्स, राइट। इसमें पॉइंट आ गया, राइट। पॉइंट है इसलिए हो गया डबल और फ्लोट, दोनों सेम ही है। फिर भी एक बार आप गूगल करके देख लेना, ठीक है। तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो हो गया प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव का मतलब आप समझ में आ गया होगा आपको, राइट। डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में डिफरेंट मतलब अलग तरीके से आपको बोलेगा कि ये सब डेटा टाइप्स क्या है, राइट। नेक्स्ट कमिंग टू नॉन प्रिमिटिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ठीक है। तो जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, मैं जावा के कॉन्टेक्स्ट में बताऊंगा। तो बात करते हैं नॉन प्रिमिटिव के बारे में। ओके, अगर तुमको मेरा हैंडराइटिंग समझ में आ रहा है तो थैंक यू भाई, तुम जीवन में आगे जाओगे। अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है हैंडराइटिंग तो भाई सुन लो मेरी बात। तो पहली बात है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में आता है एरेज। एरेज, ठीक है। एरेज क्या होता है वो समझाएंगे। एरे लिस्ट, सेट, लिंक लिस्ट, ग्राफ्स, ट्रीज एंड सो ऑन, और भी बहुत सारे होते हैं। तो बेसिकली नॉन प्रिमिटिव टाइप डेटा टाइप्स बनता है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स से बनता है। आई होप मैं समझा पाया। फिर से रिपीट करता हूँ, प्रिमिटिव डेटा टाइप से तुम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप बना पाओगे। एग्जाम्पल क्या दूँ यार? एग्जाम्पल हो गया, जैसे तुम ब्रिक्स होता है, राइट, घर बनाने के लिए ईंट होता है। ईंट से तुम ईंट के ऊपर ईंट डाल के तुम घर बनाओगे, राइट। तो तुम्हारा ईंट हो गया प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। वो जो घर हो गया टोटल वाला बड़ा वाला हो गया नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा।
तो अभी बात करते हैं थोड़ा टेक्निकल कॉन्सेप्ट के बारे में, शायद तुम्हारे सर के ऊपर से जाए, जो बच्चे लोग हैं, जो नए लोग हैं, फिर भी सुन लो, बाद में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर इतना तक तुमने देख ही लिया तो भाई बहुत थैंक यू यार, सब्सक्राइब कर दो मेरा चैनल और लाइक कर दो, ठीक है। तो बात करते हैं एरेज। एरेज क्या होता है? एरेज होता है एक मेमोरी, तुम्हारे कंप्यूटर में एक मेमोरी एलोकेट होगा एरेज में, तो एरेज में तुम स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा टाइप डाल सकते हो, दैट इज इंटीजर, नहीं तो स्ट्रिंग, नहीं तो कैरेक्टर, राइट। कोई भी स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा तुम एरे में डाल सकते हो और उसका एरे का जो साइज होगा वो फिक्स्ड होगा, राइट। वो होता है एरेज, राइट। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 0 1 2 3 4 5 मैंने डाल दिया, राइट। ये हो गया इंटीजर डेटा टाइप। ये हो गया इंटीजर डेटा टाइप, ठीक। इसमें तुम स्ट्रिंग, इसमें तुम कैरेक्टर भी डाल सकते हो, स्ट्रिंग भी डाल सकते हो। इसमें ये हो गया कैरेक्टर तुम्हारा, ठीक है। कैरेक्टर्स हो गया। इसमें तुम स्ट्रिंग डाल सकते हो। स्ट्रिंग मतलब क्या? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, ओके। अरे मैं तो भूल गया, स्ट्रिंग भी एक डेटा टाइप होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रिंग, राइट। स्ट्रिंग भी तुम डाल सकते हो यहाँ पे, जैसे ले लो प्रतीक, राम। तो ये सब हो गया स्ट्रिंग वाला डेटा टाइप्स जो तुम एरे में डाल सकते हो, ठीक है। पर तुम एरे में तुम यानी सिंगल टाइप ऑफ डेटा टाइप ही डाल सकते हो। उसका मतलब क्या हो गया? अगर तुम स्ट्रिंग डाल रहे हो तो इंटीजर नहीं डाल सकते, इंटीजर डाल रहे हो तो कैरेक्टर नहीं डाल सकते। मतलब एक एरे में सिर्फ एक ही टाइप का डेटा टाइप हो सकता है, ठीक है। ये जावा के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा होता है। जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट में तुम कोई भी डेटा टाइप मिक्स करके डाल सकते हो, ठीक है। आई होप समझ में आया। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इंडेक्स होता है एरे में। एरेज में तुम्हारा इंडेक्स होता है। जैसे ये एक एरे हो गया 0 1 2 3 4 5, तो इसका लेंथ क्या हो गया? इसका लेंथ होगा 5। मतलब यहाँ पे 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, नहीं यहाँ पे 6 एलिमेंट है, तो इसका लेंथ हो गया 6, ठीक है। बट ये स्टार्टिंग 1 से नहीं होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है इंडेक्सिंग करके। तो इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट वाला पोजीशन में इंडेक्स तुम्हारा ऑलवेज 0 होगा, एंड द सेकंड वाला स्टेज में इंडेक्स 1 होगा, थर्ड में 2 होगा। तो ऐसे चलता है, ठीक है। इंडेक्सिंग याद रखना, एरेज में इंडेक्सिंग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और ऊपर में आता है कि ये तुम्हारा और एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एरे जो होता है, एरे का साइज फिक्स्ड होता है, ठीक है। इसको ये डायनामिक साइज नहीं होता, ये यहाँ पे लेंथ 6 से 6 ही रहेगा मेमोरी में, इसको आप एक्सपांड नहीं कर सकते, ठीक है। बट एरे लिस्ट के केस में वो एक्सपांड होता है, एरे लिस्ट में आते हैं हम, ठीक है। आई होप आपको एरे के बारे में समझ में आ गया होगा। अभी बात करते हैं एरे लिस्ट के बारे में, ठीक है। अभी हम बात करते हैं एरे लिस्ट के बारे में। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एरे लिस्ट के बारे में। एरे लिस्ट का साइज डायनामिक होता है, मतलब एरे लिस्ट का साइज आप बड़ा भी कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो, और बाकी कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा, एरे की तरह सेम रहेगा। तो एरे में आप डाल सकते हो इंटीजर, कैरेक्टर, डबल, सब कुछ डाल सकते हो। एरे लिस्ट में भी आप डाल सकते हो, ठीक है। तो एरे लिस्ट का फ़ायदा ये है कि डायनामिक है, इसमें आप बहुत सारा कलेक्शन ऑफ डेटा डाल सकते हो। एरे में आप बहुत
ह्यूज चंक ऑफ डेटा नहीं डाल सकते, एरे लिस्ट में तुम डाल सकते हो। कोई डिफरेंस होता है एरे और एरे लिस्ट में, तो बाकी आप पढ़ सकते हैं इंटरनेट से। नेक्स्ट कमिंग टू सेट। सेट होता है कि ठीक है, सेट से पहले हम एरे लिस्ट का सिंटैक्स देख लेते हैं, जावा में कैसे लिखते हैं। तो बेसिकली तो ये जो लाइन मैंने लिखा वो होता है सिंटैक्स। तो लिस्ट हो गया तुम्हारा, वो कलेक्शन हो गया, राइट। तो इसमें ये हो गया, आप डेटा टाइप डालोगे, ये जेनेरिक होता है। डेटा टाइप डालोगे, ये वेरिएबल हो गया, और ये न्यू एरे लिस्ट हो गया, राइट। ऐसे आप इनिशियलाइज कर सकते हो, उसके बाद आप लिस्ट में कुछ भी ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं एरे लिस्ट को। अभी हम सेट के बारे में बात कर लेते हैं। अगर तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप मेरा लास्ट वीडियोस देख सकते हैं। वेरिएबल्स, डेटा टाइप, कलेक्शंस, लाइब्रेरीज, वो सब कॉन्सेप्ट होता है, आप इंटरनेट पर पढ़ सकते हो वो सब, तब आपको समझ में आएगा इजीली। ये सेट क्या होता है? सेट आपने तो मैथमेटिक्स में पढ़ा ही होगा, राइट। मैथमेटिक्स में पढ़ा ही होगा सेट क्या होता है। सेट मतलब इसको ऐसे डिनोट करते हैं हम, ये हो गया ए बी, ये हो गया सी, राइट। तो सिमिलरली ऐसे सोच सकते हो आप, सेट वही होता है। मतलब सेट में क्या होता है ना, डुप्लीकेट स्टोर नहीं होता है। डुप्लीकेट मतलब एक वैल्यू होता है, फॉर एग्जांपल मेरा तरह प्रतीक दूसरा प्रतीक नहीं रह सकता एक ही बिल्डिंग में। ये होता है सेट, राइट। ये होता है सेट। नाउ इसका क्या बोलते हैं, इसका सिंटैक्स देख लेते हैं, ठीक है। सेट को कैसे डिनोट करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, सेट न्यू सेट, न्यू हैश सेट। इसको ऐसे लिखते हैं, ये हो गया डेटा टाइप। तो अभी के लिए आप सिंपली समझो कि ये सब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप से, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप से ही बनता है। बाकी सब वो सब कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, कलेक्शन फ्रेमवर्क का अलग है, उसको अलग वीडियो में मैं समझाऊंगा बाद में, ठीक है। ये हो गया सेट। ऐसे इनिशियलाइज करने के बाद आप सेट का फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं। और भी बहुत सारे हैं उधर, लिंक लिस्ट, ग्राफ्स, ट्रीज एंड सो ऑन। तो इस वीडियो का मोटिव था कि आपको एक कॉन्टेक्स्ट देने का कि प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होता है। तो आई होप कि मैं आपको कॉन्टेक्स्ट दे पाया कि प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होता है। तो कुछ अलग कॉन्सेप्ट्स है, वीडियो बनाऊंगा मैं, कलेक्शन फ्रेमवर्क, राइट। उसके बाद वेरिएबल्स, राइट। स्ट्रिंग के लिए अलग कॉन्सेप्ट है, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो सब जानना पड़ेगा, राइट। तो अभी के लिए इतना ही गाइस। तो सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। अगर आपको कुछ वैल्यू मिला है, मुझे भी मोटिवेशन मिल जाता है न्यू वीडियो बनाने में। सजेस्ट कीजिए कि क्या वीडियो आपको चाहिए, मैं उस पर रिसर्च करके आपको बताऊंगा, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊंगा, राइट। Thanks guys for watching this video. If you like this video, subscribe my channel. See you in the next video. Bye.